प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद संसद भवन के लिए। उनकी विशेष लिमोजीन राष्ट्रपति अंगरक्षक अपने कमांडेंट के नेतृत्व में राष्ट्रपति महोदय के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। So as the presidential limousine, escorted by the president's bodyguard, makes its way from the forecourt towards the central hall of Parliament, many thoughts going through the president-elect and the president's mind. This, of course, is the central portion, which is the Jaipur column here, and the cavalcade will skirt this, go around it. It's truly a masterpiece of architecture, the central column, also called the Jaipur column. And it stands at a height of 145 feet at an approximate distance of 555 feet from the main gate. गौरव, बड़ा दिलचस्प होगा ये अंदाज़ा लगाना कि इस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जो निवर्तमान राष्ट्रपति हैं और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, दोनों के मन में क्या क्या चीज़ें चल रही होंगी। ये बड़ा भावुक क्षण होता है। Absolutely, Sanjeev. Every president, as he or she takes oath to this high office, reassures each and every Indian's faith in its leaders that the nation and the well-being of its people will come before any other ideology or agenda. Democracy places people first, and the people place some leaders first to protect, to lead, and enrich the fabric of the nation. As our outgoing President Shri Pranab Mukherjee said in his farewell address to the nation, he said, "My sacred text has been the Constitution of India, my temple has been the Parliament of India, and my passion has been the service of the people of India." Powerful words, very, very profound and very meaningful. Right in the center, of course, as we said earlier, you can see the Jaipur column designed by Sir Edward Lutyens and was sponsored by Maharaja Madhav Singh of Jaipur. It's made by sandstone topped by the Star of India emerging from a 5-ton bronze lotus and was installed in 1930. भारतीय गणराज्य, जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति हालांकि संसद के अंग होते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठते हैं ना उनकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। संसद से संबंधित उन्हें कुछ ऐसे संवैधानिक कृत्य हैं जिनका निर्वहन करना होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं और जो बात बार बार कही जाती है, रेखांकित की जाती है, संविधान की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, ये महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक। और इस पद को ऐसी कई महान विभूतियों ने सुशोभित किया है जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मजदूर नेता, कई ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन से देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे और जिन्होंने इस महान लोकतंत्र में अपना
विशिष्ट योगदान दिया। आज उसी महान लोकतंत्र और देश का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और शुरू हो रहा है नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। A question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task and delivery orientation, what really is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol, all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically, keeping the present in mind. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. In fact, a healthy democracy rests on transitions of people, parties, and power. The seamlessness, constitutional nature, and dignity of these transitions only serve to strengthen democracy. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष उन्होंने पिछली सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया और उसके बाद सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जब आई, तब से उनके साथ उनके कार्य को लेकर और उनकी कार्यशैली को लेकर दोनों में जो विशेष सौहार्द है वो कई बार प्रकट हुआ है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से भी और प्रधानमंत्री के शब्दों में भी। So here we are, the wonderfully attired President's bodyguards. A little bit about them. The personnel of the regiment are handpicked, all of them at least 6 feet tall. Besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men are also trained horsemen, paratroopers and tankmen. The regiment has seen action in Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Power in Sri Lanka in 1988. In fact, the men of the bodyguards have also distinguished themselves on United Nations duties in Somalia, Angola and Sierra Leone. A detachment also serves in Siachen Glacier, the highest and coldest battlefield in the world. धीरे धीरे काफिला रायसीना पहाड़ी से उतरकर विजय चौक से मुड़कर संसद भवन के गेट नंबर 5 की ओर बढ़ता हुआ, जहां इनकी अगवानी के लिए इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अगवानी के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित होंगे। In fact, the central hall in Parliament House is a place of great historical importance, and the transfer of power on the 15th of August 1947 from British to Indian hands took place in that hall. In fact, the Indian Constitution was also framed in the central hall, and today our new president, the 14th president of the nation, Shri Kovind, will be sworn in there. इतिहास के पन्ने इसी तरह एक एक करके जुड़ते जाते हैं, एक नया अध्याय आज उसमें जुड़ता हुआ। गौरव, एक नई शुरुआत जो प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए जो की, कि तब तक राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो उन्होंने परंपरा बदलकर फिर उसको माननीय उन्होंने तब्दील किया। Right, and that was the most beautiful part of the president's tenure. He was a president, but also understood the institution and beautifully understood the current context of how the world is changing and so many things need to change. And here we're giving you a long shot of the limousine along with the president's bodyguard going into
the gate at Parliament House. काफिला संसद भवन के द्वार से आगे बढ़ता हुआ In fact, quotations have a beautiful way of conveying a lot in very, very simple words. And at the central hall of Parliament House, this is right at the top of the entrance of that hall, there is a beautiful quotation which says, and it's in Sanskrit, the English meaning is, that one is mine and the other a stranger is the concept of little minds. But to the large-hearted, the world itself is their family. This truly epitomizes what India has always stood for. दिल्ली में वैसी भी हरियाली काफी है और इन दिनों मौसम के हिसाब से देखें तो हमारे इन तमाम दृश्यों में आप हरे भरे घने वृक्षों को भी देख सकते हैं इस लोकतंत्र के मंदिर के साथ। And here arriving at the entrance of the central hall, the president's bodyguard is escorting the presidential limousine. Slight sun seems to have come out, and of course perfect for capturing wonderful images, some of those we showed you earlier, panoramic shots. और धीरे धीरे वो महत्वपूर्ण क्षण अवसर नजदीक आता हुआ। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रवेश कर रहे हैं संसद भवन में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अगवानी, बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संसद भवन परिसर में यह आखिरी प्रवेश और अब उनके सम्मान में सलामी दी जाएगी। और संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए साथ में हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर अगवानी करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। और यहां से सीधे संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में जाते हुए बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का यह आखिरी प्रवेश संसद भवन में। 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 सालों तक अपनी सेवाएं रामनाथ कोविंद देंगे। निश्चित रूप से इन तमाम सारे पलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी सुनहरी यादों के साथ यहां से विदा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन
भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए, साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। तो अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस गरिमामय समारोह के साक्षी आप और हम मिलकर होंगे। तुरही बजाकर यह संदेश संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में दिया गया है कि अब राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सम्मान में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में मौजूद प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उनके सम्मान में खड़े होंगे। तो संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। महामहिम राष्ट्रपति जी, मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है।
अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। शपथ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी,
श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहाँ सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणब दा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूं। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है। विविधता ही हमारा वो आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ
डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगार दाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो।
एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Respected Rashtrapati Ji, you have just addressed the members of Parliament. With your permission, I will read the first and the last paragraphs of the English version of the address. The rest should be considered as read. Respected Shri Pranab Mukherjee Ji, respected Shri Narendra Modi Ji, Shrimati Sumitra Mahajan Ji, Shri Justice J.S. Kher Ji, Excellencies, Honorable Members of Parliament, ladies and gentlemen, and fellow citizens. I thank you for electing me to the responsibility of the President of India, and I enter this office with all humility. Coming here to Central Hall has brought back so many memories. I have been a member of Parliament, and here in this very Central Hall have had discussions with many of you. Often we agreed, sometimes we disagreed, but we learned to respect each other, and that is the beauty of democracy. We need to sculpt high growth economy and educated, ethical and shared community and an egalitarian society as envisioned by Mahatma Gandhi and Deendayal Upadhyay Ji. These are integral to our sense of humanism. This is the India of our dreams, an India that will provide equality of opportunities. This will be the India of the 21st century. Thank you very much. Jai Hind, Vande Mataram. मान्यवर, आपका आदेश हो तो अब समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए।
रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की और वो अब अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। 21 तोपों की सलामी के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए तमाम सभी मंत्री, मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों के और सांसदों से मिलते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण के बाद की संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। न्याय, समानता, बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन मैं करूंगा, ये शब्द अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहे। संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में तमाम सभी लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों और राजनीतिक दलों के प्रमुखों से मिलते हुए और अब संसद भवन परिसर से बाहर कूच करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, साथ में है लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। अब हम यह कह सकते हैं कि एक तरह से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को विदाई दी जा रही है और इसका भी एक विशेष महत्व है। जब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति को विदाई देते हैं, नए राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ने जाते हैं। इस दौरान पूर्व और मौजूदा राष्ट्रपति एक बग्गी में सवार होकर पूर्व राष्ट्रपति को उनके घर छोड़ते हैं। लिहाजा इस बार रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 राजाजी मार्ग उनके नए निवास स्थान पर छोड़ने के लिए जाएंगे। जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और अब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की विदाई और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। पूरे सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा की विदाई और इस विदाई में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सम्मान देते हुए प्रणब दा को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से राष्ट्रपति पद का जो प्रोटोकॉल होता है, जो सम्मान उस पद के तहत दिया जाता है, उस पूरे सम्मान का निर्वहन करते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाएंगे। 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ली। 21 तोपों का सम्मान उनके राष्ट्रपति बनते ही रामनाथ कोविंद को दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाई, जिसके बाद रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष को। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व के साथ साथ चारित्रिक सक्षमता भी लेकर के आए। 21वीं सदी भारत की सदी होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्र गौरव। साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही उसमें देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले, तपती धूप में खेती करने वाले किसान, वैज्ञानिक, भारत के युवा, चिकित्सक, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने वाले लोग, पुलिस प्रशासन, शिक्षक, गृहिणी, ये सभी राष्ट्र निर्माता है। साथ ही रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि 2022 को हम स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेंगे और जब हम स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएंगे तब ऐसी व्यवस्था भारत में हो कि समाज के अंतिम व्यक्ति का आर्थिक विकास हो सके।
संसद भवन परिसर से बाहर आते हुए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वहां पर मौजूद है। हमने देखा जब संसद भवन परिसर में प्रवेश कर रहे थे तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगे चल रहे थे, लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अग्र पंक्ति में है और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सलामी दी जा रही है। तो ये सीधी तस्वीरें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन परिसर से जाते हुए और अब रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए निकले हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शपथ ग्रहण से पहले जब राष्ट्रपति भवन से निकल रहे थे तब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के हिसाब से इसी वाहन में आए थे, लेकिन तब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाईं ओर बैठे थे और प्रणब मुखर्जी जो कि तब राष्ट्रपति थे भारत के, तब वो दाईं ओर बैठे थे। और अब शपथ ग्रहण के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने के लिए जाते हुए शपथ ग्रहण के बाद कुर्सी का स्थानांतरण किया गया। जिस कुर्सी पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आसीन थे उस पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बैठे। 21 तोपों की सलामी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दी गई और उसके बाद अब प्रोटोकॉल के हिसाब से पूर्व राष्ट्रपति को उनके नए निवास स्थान 10 राजाजी मार्ग पर छोड़ने जाते हुए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। The Republic of India has a new president, Shri Ram Nath Kovind, the 14th president of the nation. Shri Ram Nath Kovind, the second Dalit to become the president of the country and the first BJP member to be elected as president. Soft-spoken, well-read and articulate, Shri Kovind has an illustrious background in the legal arena. His understanding of the Constitution will aid him in essaying his role as the conscience keeper of the nation. हमारे देश में हमेशा ये माना जाता है कि किसी भी शुभ अवसर पर अगर वर्षा का आगमन हो जाए तो ये शुभ संकेत होता है और भारत के नए राष्ट्रपति ने 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण की है और संसद भवन से जैसे ही उनका काफिला राष्ट्रपति भवन की ओर चल रहा है, तेज बारिश यहां एक शुभ संकेत इस अवसर पर, इस लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए। Nature has a melody of its own. The clatter of hooves and the beautiful sound of rain on the water, on the tarmacs, on the vehicles and on our shoulders, blessing not only the new president but each and every Indian as the heavens open up to say, we welcome you, we welcome you, we welcome you.
ऐसे ऐतिहासिक अवसरों पर एक एक बात सबको याद रहती है और बाद में किस्सों के तौर पर उसे बयान किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ के बाद तोपों की सलामी की गूंज से पूरे वातावरण में संदेश गया कि भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। उन्होंने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद सदस्य रहा हूं तो यहीं सेंट्रल हॉल में कई सदस्यों से चर्चा करने का अवसर भी मुझे मिला। उन्होंने संविधान की मूल भावना के बारे में बात की। उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्व धर्म समभाव और ये संस्कृति की हमारी परंपरा है। हर नागरिक के लिए उन्होंने कहा कि हर नागरिक इस देश का राष्ट्र निर्माता है। India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the impossible seem possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and co-flowered with a seeming randomness but larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. Dissent has made us progress. Collaboration has helped us grow, and belief in our nationhood has kept us together. रायसीना पहाड़ी के दृश्य वैसे भी बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दोपहर की इस बारिश में ये दृश्य और भी अधिक आकर्षक होते हुए, और इधर राष्ट्रपति का काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी की ओर से होता हुआ राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ता हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संक्षिप्त भाषण में ये जिक्र किया कि मैं एक साधारण पृष्ठभूमि से आता हूं और यहां तक का सफर, यहां तक की यात्रा काफी लंबी रही है। श्री रामनाथ कोविंद को रामचरितमानस की कई चौपाइयां कंठस्थ हैं। हैंडलूम की खादी पहनते हैं। साधारण जीवन जिया है उन्होंने। Awash with sentiment, feelings, rain and ceremony. Rashtrapati Bhavan, Parliament House and the areas in between. Going up Raisina Hill, flanked by the North and the South Blocks. A picture of rain-washed perfection. With people being the cornerstone of organic renewal, the context of the power vested in them, by them, needs to be understood. In fact, power is vested to empower. Power is the energy that is entrusted in capable hands to bring about change for the better, for the marginalized, and for the future. In fact, power, when it rests, strengthens the individual. Power, when it is in motion, strengthens people. Today, as we celebrate transition, we also celebrate simplicity, humility, and humble beginnings. President Kovind, who grew up with financial poverty, but with a wealth of determination. The belief that leaders cutting across party lines were unanimous in saying that he's a low-profile politician, a deeply spiritual individual, and of course a perfect gentleman. शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के साथ साथ उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। अपने गांव में कई लड़कियों का विवाह कराने में उन्होंने आर्थिक सहायता दी। साधारण जीवन लेकिन उच्च विचार का आदर्श, और अपने संबोधन में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, रेखांकित किया उन बातों को।
उन्होंने कहा कि हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है और हर नागरिक हमारे पारंपरिक मूल्यों का संरक्षक है और राष्ट्रीय गौरव राष्ट्र निर्माण का आधार है। And each one of us is confident that he will bring to the highest office in the country credit and dignity. His contributions will enrich our national dialogue and thought, giving it depth of discourse as befits this high office. He is articulate, he is lucid in his thought and speech, and so far has played a significant role in furthering many lives. विश्व में कई लोगों के लिए ये कल्पना करना बड़ा कठिन होता है कि हमारा देश सचमुच कितना विविधता वाला है, और यही बात संबोधन में श्री रामनाथ कोविंद ने रखी। उन्होंने कहा कि विविधता हमारे देश की सफलता का आधार है। Skirting the Jaipur column, the President's bodyguard now escort the new President Shri Kovind and former President Shri Pranab Mukherjee to Rashtrapati Bhavan. राष्ट्रपति का काफिला राष्ट्रपति भवन के फोकॉट यानी अग्र प्रांगण की ओर बढ़ता हुआ, इसमें नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी the limousine drawing up to the saluting base. The role of the President, very, very critical in our democracy. Former President Pranab Mukherjee alights from the vehicle, and President Kovind at the saluting base here. President Kovind taking the salute, his first salute at the forecourt of Rashtrapati Bhavan.
and now will be escorted to the study. राष्ट्रपति कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अब स्टडी की ओर प्रस्थान करते हुए ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन, जिसके एक एक पन्ने पर इतिहास भी है और संस्कृति की छाप भी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूरे सम्मान के साथ भारत के राष्ट्रपति कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आगमन विशाल राष्ट्रपति भवन और लगभग 340 कमरे हैं यहां पर, और ये स्टडी की ओर बढ़ते हुए परंपराओं और औपचारिकताओं का निर्वहन बड़े ही शानदार ढंग से राष्ट्रपति कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और राष्ट्रपति कोविंद की पत्नी श्रीमती सविता ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन जितना विशाल है, अगर इतिहास के पन्नों में देखें और इसकी विशालता को समझें तो वो हमें चमत्कृत करती है। ऐसा अद्भुत है ये राष्ट्रपति भवन। Welcome to Rashtrapati Bhavan, the office and home of the President of India. Completed in 1929, Rashtrapati Bhavan, designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker, is one of the most magnificent presidential palaces ever built. The erstwhile symbol of colonial power and imperial domination is today representative of Indian democracy, of its inclusiveness, plurality and secularism. This is not just the residence of the constitutional head of the world's largest democracy, but also in terms of area, the largest residence of a head of state anywhere in the world.
When the 13th President of India, Pranab Mukherjee, took over in July 2012, his vision reflected his statesmanship. Rashtrapati Bhavan is a heritage building. It is a living heritage. Since it had been constructed in 1920s, it had undergone a large number of changes which had started compromising the heritage character of this building. Therefore, it was essential at this stage to take corrective measures to restore the original integrity of the design and the construction of this very beautiful building. Much like this clock tower, time seemed to be standing still at the estate. It needed focused inputs from experts and a dedicated restoration team. We got Intac in. They worked with a team of 40 experts and within 6 months gave us a report which lays down the broad framework of what can be done, what should be done, and what should not be done. The mandate was to bring about a complete shift in approach towards the restoration, running, and upkeep of this heritage structure. We had to make every part of Rashtrapati Bhavan functional. We had to avoid purchases and make use of what we had in our Bhavan itself. The office of the President is called the Study. This is the formal meeting place for the President where he receives his guests and visitors. Murals by eminent artist Sukumar Bose inspired the look and color scheme of the Study. Gifts received by various presidents adorn the Study. The Study opens into the morning room. The President meets dignitaries here. We started with the carpets. We decided that the carpets would tell us the color schemes, or the carpets would tell us how to work upwards. Each room in the Rashtrapati Bhavan stands witness to history. To restore these to their former glory, the restoration team had to rearrange available resources in view of the heritage nature of the rooms. We found furniture, carpet, art from the Lutyens and the subsequent eras. We restored them. We placed them according to the functional requirements and created a new ambience everywhere. A lot of the furniture was, the sets were, just scattered randomly all over not only the Rashtrapati Bhavan, but all over the President's estate. So it took a while for us to bring these pieces back, then put them in families, and slowly we started discovering that, oh, this table is a brother of that one in that room. Let's get them together. Oh, these chairs belong to that family. This coffee table. So we started reuniting the families. Each room had to be decorated, given a character, and then the setting frozen. No chair could be moved once it was set. Work was undertaken in each room to revive its distinct character, just like the way they were originally meant to be. Fascinating works of art by reputed Indian and European artists were restored to add character to the walls. We made a positive effort to put in place an e-management system of all the art objects, furniture, furnishings in the building.
Darbar Hall is where the first government of independent India was sworn in. Lutyens designed new viceregal thrones for the Darbar Hall to replace those from Government House in Calcutta. With new flags, paintings and a warm look, Darbar Hall has regained its past grandeur and is now used for hosting civil and defence investiture ceremonies and for conferment of other national and international awards. Next to Darbar Hall is the library. It is also described as the daughter of Darbar Hall. Besides priceless publications from the 19th century onwards, it also has more than 2,000 rare books. They are now being digitized and preserved for posterity. We've restored about 150 very valuable volumes. We scanned about 12,000 volumes, and of these 8,500 are now available in digital format. We had about 8 lakh photographs. We have already completed the job with about 7.5 lakh prints. Another 50,000 we hope to complete in another 6 months' time. Ashoka Hall was originally built as a state ballroom. It is now the venue for accepting credentials of foreign envoys and other formal functions. Embellishments on the ceilings, carpets and chandeliers reveal the stately splendor of the room. We are also putting RFIDs on these furniture items so that if they are moved from one place to another, we get a signal where it has gone and it can be quickly brought back. Rashtrapati Bhavan, declared a Grade 1 heritage structure in 2009, is an iconic living heritage. It requires meticulous attention to detail in every aspect of its conservation and restoration. The comprehensive conservation management plan drawn up by INTAC focuses on these areas and lays down the blueprint for future interventions in the President's estate. We went into all the detailed drawings, the fine details that went into the building. We studied that and tried to restore using the same material. The presidential retreats spread across India are also going through an era of renovations to return them to their original magnificence. While the Rashtrapati Nilayam at Hyderabad had a greenhouse constructed and drainage system repaired, the retreat at Mashobra, Shimla was refurnished completely. At the President's estate, the grand bungalow called MTC-1, that used to house the Viceroy's private secretary, was part of the original design of Lutyens. This building is one of the best designed houses by Lutyens himself. The bungalow had lost its character due to years of neglect and misuse and was even ordered to be demolished. The President was extremely keen that this building should be restored. The new restoration drive painstakingly brought it back to life, returning its heritage charm in great detail.
winds of change are blowing rather strongly here at the President's estate. Access to the Bhavan was simplified. The first direction that the President gave us was that this Rashtrapati Bhavan belongs to the people and it should be opened and given easy access to the people. Visitors can now book online using a high-tech interface and visit Rashtrapati Bhavan 3 days in a week. Soon, museums at the President's estate will remain open throughout the week. We have democratized the access of the Rashtrapati Bhavan using the e-visitor management system. For many events at the President's estate, guests are now invited through digital invitations. Which is a barcode embedded security invitation systems. Again, this system has helped us in creating efficient delivery of the invitation, running into thousands in numbers. Now, every asset in the Bhavan is accounted for. A high-tech assets documentation and inventory management system driven by the latest software ensures that. This includes the entire wealth of gifts received by the President. Each one is meticulously RFID coded. We have records at 4 to 5 places. We are reasonably sure that this will continue. No stone is left unturned to reach out to the people. In view of the changing times, the President now maintains an active online presence through digital media. A convenient e-presidential message system, or EPMS, an e-presidential function